बेटा थोड़ी सी डिस्टरबेंस होने वाली है इस वीडियो में आपको। ये अब बताने जा रही हूँ बहादुर शाह मेजर अगेंस्ट द सिख्स। When the Mughal emperor Bahadur Shah became to know that Sikhs had spread terror in Mughal rulers of Punjab, then he fully concentrated his attention on Punjab. On June 27, 1710 AD, he advanced towards Punjab from Ajmer. He ordered the Subedar of Delhi and Awadh, the Nizams of Muradabad, Allahabad, and Fauzdars to advance towards Punjab along with their armies. जब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को यह पता चला कि सिखों ने पंजाब के मुग़ल शासकों के बीच आतंक फैला रखा है, तो उसने अपना पूरा ध्यान पंजाब पर कंसंट्रेट कर लिया, पूरा केंद्रित कर लिया। तो 27 जून 1710 AD को वह अजमेर से पंजाब की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और अवध के सूबेदारों, मुरादाबाद और इलाहाबाद के निज़ामों और फौजदारों को अपनी सेनाओं के साथ पंजाब की ओर बढ़ने को कहा। Battle of Aminabad. Bahadur Shah sent a huge army under the leadership of Firoz Khan Mewati and Mahawat Khan to fight against the Sikhs. Vinod Singh and Ram Singh resisted the enemy on October 26, 1710 AD at Aminabad between Thanesar and Travari. तरावड़ी भी बोल सकते थे, तरावड़ी. They forced Mahawat Khan to retreat, but due to the presence of enemy in large number, the Sikh had to suffer defeat. The living and the dead Sikhs as well were insulted. Their bodies were hung on the side of GT Road. The Fauzdari of Sirhind was entrusted to Firoz Khan Mewati by Bahadur शाह। तो अमीनाबाद का जो बैटल हुआ, बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ लड़ने के लिए फिरोज खान मेवाती और महावत खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। तो 26 अक्टूबर 1710 को विनोद सिंह और राम सिंह ने अमीनाबाद जो कि थानेसर और तरावड़ी के बीच में है, दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने महावत खान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मुग़ल सेना की भारी संख्या में इसमें होने के कारण सिखों को हार का सामना करना पड़ा। तो सिखों को जीवित और मृत शरीरों का अपमान हुआ। उनके शवों को जीटी रोड के किनारे लटकाया गया। तो बहादुर शाह ने सरहिंद की फौजदारी फिरोज खान मेवाती को सौंप दी। Now, Battle of Sadhaura. When Banda Bahadur got the news of the defeat of Sikh, he attacked the enemy along with his soldier. At that time, a huge army of Mughal was Sadhaura. Mughals was at Sadhaura. On December 4, 1710 AD, as the army of enemy set out in reach of right camping place, then the Sikh attacked them. The Sikh fought bravely. They inflicted heavy losses of enemy, but in the evening a large number of soldiers of the royal army joined the army of the enemy. Therefore the Sikh left the fight and took refuge in the fort of लोहगढ़। तो सधौरा का ये जो बैटल हुआ था, जब बंदा बहादुर को सिखों की हार की खबर मिली तो उन्होंने अपनी सेना के साथ दुश्मन पर हमला किया। उस समय सधौरा में मुगलों की सेना बहुत मजबूत थी। तो 4 दिसंबर 1710 AD को जब मुग़ल सेना सही स्थान पर की तलाश में निकली तो सिखों ने उन पर हमला कर दिया। तो सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन शाम को मुग़ल सेना में और अधिक सैनिक शामिल हो गए और भी उनकी तादाद बढ़ गई। इसलिए सिखों ने युद्ध छोड़कर लोहगढ़ के किलों में शरण ले ली। ठीक है, तो जैसे मुग़ल सेना में और भी अधिक सैनिक शामिल हो गए तो सिखों ने क्या किया, लोहगढ़ किले में शरण ले ली। अब है बैटल ऑफ लोहगढ़। तो बहादुर Shah also reached there by that time. He himself decided to take action against Banda Bahadur. He ordered Wazir
Munyam Khan to proceed towards the fort of fort to estimate the center of the Sikh, but disobeying the order of emperor, he attacked the fort of Lohgarh on December 10, 1710. The Mughal Sardar also attacked the fort. The Sikh fought valiantly with enemy. A large number of soldiers were killed on both sides. The Sikh had to face difficulties due to the scarcity of food in the fort. It became impossible for them to continue the fight for long. A Sikh named Gulab Singh wore a dress like Banda Bahadur to help bring him out of the fort. Banda Bahadur went out with Sikh soldier, but Gulab Singh sat on the place of Banda Bahadur. Banda Bahadur left towards the hills of Nahan. Munyam Khan again attacked the fort in the morning of December 11, 1710 AD. Soon the Mughal won the fort. Gulab Singh was killed. They were saddened by Banda Bahadur's escape. Banda Bahadur, Bahadur Shah sent his army under the leadership of Hamid Khan towards Nahan to chase Banda Bahadur. Banda Bahadur reached Lahore via Sadhaura, Badauli, Ropar, Hoshiarpur and Kalanauр. पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जब मुगल सेना में और भी अधिक सैनिक शामिल हो गए थे तो सिख फौज ने लोहगढ़ के किले में शरण ली। तो लोहगढ़ का युद्ध क्या हुआ था? तो इस बीच बहादुर शाह भी वहाँ पहुँच गया। उसने खुद बंदा बहादुर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने वजीर मुनियम खान को सिखों की ताकत का अनुमान लगाने के लिए भेजा, लेकिन मुनियम खान ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए 10 दिसंबर 1710 को लोहगढ़ के किले पर हमला कर दिया। तो जो दूसरे मुगल सरदार थे उन्होंने भी हमला कर दिया। सिखों ने दुश्मन के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों में कई सैनिक मारे गए, लेकिन किले में खाने की कमी के कारण सिखों के लिए लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया। तो बंदा बहादुर को बचाने के लिए गुलाब सिंह नाम के एक सिख ने उनके जैसे कपड़े पहने। बंदा बहादुर कुछ सैनिकों के साथ किले से निकलकर नाहन की पहाड़ियों की ओर चले गए। गुलाब सिंह बंदा बहादुर की जगह बैठे रहे। तो 11 दिसंबर 1710 ईस्वी की सुबह मुनियम खान ने फिर से एक किले पर हमला किया और मुगलों ने किला जीत लिया। गुलाब सिंह मारे गए, लेकिन बंदा बहादुर के भाग जाने से मुगल सेना निराश हो गई। तो बहादुर शाह ने बंदा बहादुर का पीछा करने के लिए हामिद खान को नाहन भेजा। वहाँ वे सडौरा, बडौली, रोपड़, होशियारपुर, कलानौर होते हुए लाहौर पहुँचे।